We have currently 3 manufacturing units. One is the largest single unit in the world for making pickle. We make almost 25,000 tons of pickle. 2.5 करोड़ किलो अचार इस प्लांट में बनता है. This one factory exclusively made for Tutti Frutti because we are the largest maker of Tutti Frutti in the world now. निलॉन्स शायद से इंडिया के हिस्ट्री में एकमात्र ऐसी कंपनी होगी जिसने पहले डब्बे से आखिरी डब्बा पूरे 24 डब्बे ट्रेन में सिर्फ अचार भर के भेजा है जलगांव से गुवाहाटी. हमारे लिए तो ये गोल्डन हिस्ट्री में लिखा जाने वाला एक ये है कि एक ट्रेन जाती है और पूरी ट्रेन सीमेंट की जाती है, कोल की जाती है, लेकिन अचार से भरी हुई किसी ने शायद से ना सुना है ना आने वाले समय में सुनेगा. 1962 में फैक्ट्री स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन 1968 तक हम लोग फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं थे. लेकिन 1969 में कुछ कमाल हुआ. वो दिन याद है जब हम पूरे फैमिली के साथ समर वेकेशन जाते थे ट्रेन में. वी डोंट रिमेंबर मच ऑफ द वेकेशन, बट वी डू रिमेंबर दोज ट्रेन जर्नीज. एज इंडियंस वी थिंक ऑफ आवर चाइल्डहुड एंड दिस ट्रेन जर्नीज आर द हाईलाइट्स. याद है वो जैम के पैकेट्स, वो पिकल के सैशेस जो कभी कभी हम बैग में डाल के अपने घर ले आते थे. दोस्तों के साथ आइसक्रीम पार्टीज, और आइसक्रीम पार्टी में वो टूटी फ्रूटी फ्लेवर. कोई भी ट्रिप में जाने से पहले पापा जो मिक्स फ्रूट स्लाइस केक लेके आते थे जिसमें रंग बिरंगी टूटी फ्रूटी हुआ करती थी. वी ऑल रिमेंबर हाउ ईच बाइट वुड टेस्ट. Why? क्योंकि इसमें प्यार मिला है. I am proud to be part of all of this बचपन की memories, and I hope to continue this legacy for the coming generation as well. There is little bit of Nilons in every 90s का kid. नमस्कार, मैं हूँ दीपक संघवी, MD and CEO of Nilons, and let me tell you a story about the largest pickle maker of the world. एंड इस स्टोरी की शुरुआत इसी कमरे से हुई थी. We come from basically Rajasthan. About 190 years back, my forefathers moved to this village. And they moved here as a money lender. With money lending, when people were not able to return money, they ended up giving lands to my forefathers, and from money lenders we became farmers. At a point in time, we almost had about 1,500 acres of agriculture land, and we were doing agriculture. My uncle was just about 19, father was about 50. That's the time they had to leave their education and come back because they lost their father. So my father wanted to pursue his education. So my uncle said कि I will take care of the farm duties. मैं खेती संभालता हूँ, you go and study. So he convinced the family that the younger one should study, and I will take care of the duties. So in 1960s, when my father did his graduation in BSc Agriculture, that's the time he said that we have been doing farming, but can we do some forward integration of what we have been doing? And my father and uncle decided together this would be a good move. So in 1962 में, that's how the beginning of Nilons happened. And that's where we moved from a money lender to a farmer, and farmer now to an industrialist. So Nilons started in 1962. The first manufacturing was done virtually in this house. This was the factory then.
Both of them took 2 vehicles, loaded the first goods that they made at the factory or at this house, and went in 2 different directions. And in 1962, they found their first distributor in the city of Nagpur by name of Fattelal Magalla, and that was the first sale that happened. So 1962 में फैक्ट्री स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन 1968 तक हम लोग फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं थे. लेकिन 1969 में कुछ कमाल हुआ. हमारे अंकल और फादर ने मिलिट्री सप्लाई के लिए टेंडर फिल किए थे और उम्मीद थी कि कुछ मिल जाए तो शायद से प्रोडक्ट चलेगा. पिकल की सप्लाई था और होता है कि एक दिन पोस्ट कार्ड से आता है कि आपका मिक्स पिकल सिलेक्ट हो चुका है, आपको इतनी बड़ी ऑर्डर मिली है. तो पापा और अंकल बहुत एक्साइटेड हुए क्योंकि वो ऑर्डर की साइज़ थी उस वक्त की, उनकी साल भर की बनाने की कैपेसिटी की ऑर्डर एक मिलिट्री ने दे दी थी. तो बिजनेस रातों रात दुगना हो रहा था. देखते देखते 4 ऑर्डर ऐसे आए जो बिजनेस को 1 महीने में 5 गुना कर दिए. पहले दिन का जो मिक्स पिकल का एक्साइटमेंट था वो बाय 3rd पोस्ट कार्ड वो एक टेंशन हो गया कि इतना अचार बनाएंगे कैसे, डिस्पैच कैसे करेंगे. बट दैट वाज द ब्रेक थ्रू वेयर द कंपनी बिकेम 5 times with just 1 support of government orders, and that was a big breakthrough. और वहाँ से Nilons has never turned back. टूटी फ्रूटी एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो हर बच्चे के बचपन का एक वो बहुत प्यारा हिस्सा रहा है. मुझे याद है कि हर बच्चे के पेरेंट्स पान शॉप पे जाएंगे अगर पान खाने तो बच्चों के लिए टूटी फ्रूटी अपने पेपर में रैप करा के लेके आते. सो इट्स एवरी चाइल्डहुड मेमोरी हर बच्चे की है. तो हमारे जो यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो केमिस्ट थे उन्होंने ऐसा ही एक प्रोडक्ट बनाया जो हम टूटी फ्रूटी आज जिस नाम से जानते हैं, और वो फ्रूट से बनाया और मेरे फादर को दिया कि मैंने एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया है. उस समय हमारे गुजरात के एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो उत्तरायण फैक्ट्री विजिट के लिए आए और उन्होंने पापा के ऑफिस के टेबल पे देखा कि ये प्रोडक्ट है और उन्हें ऐसे खाया. बोले ये तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं पान में डलवा सकता हूँ. और इस प्रोडक्ट की शुरुआत इंडिया में उस वक्त 1970 में हुई, जहाँ ये प्रोडक्ट बनाया गया. पान के शॉप में इंट्रोड्यूस कराते हैं और वहाँ से पान, फिर आइसक्रीम, फिर केक्स, फिर बिस्किट, फिर बेकरी, ये हर जगह टूटी फ्रूटी बनता चला गया, पहुँचता चला गया. और इस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन वेरी प्राउडली आई कैन से वाज डन बाय Nilons इन द कंट्री ऑफ इंडिया. So I did my engineering and came back and I went to IIM Ahmedabad. I did a 4 months management education program. Came back in March and was understanding the business with my father. Very unfortunate event in that same year. In September, I lost him due to cardiac arrest, and I was just 24 as a kid. Being the only son in the family, I had no other thing to do but to get into the business and take control. I started to come to the office, started to work with the people that my father had hired. But the first thing was, जो पापा के साथ वाले लोग थे उनका thought process था कि जो हमने करके देख चुके हैं कुछ नहीं होता, तो कहीं ना कहीं एक वो lethargy हो गया था कि there is not much scope available, and that was frustrating me. कितना opportunity, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कुछ नहीं हो सकता. That made me look at changing the management, getting the right people with me, and I started to look around. Went to my professors at IIM Ahmedabad, asked them, can you help me to get somebody who can help grow the business with me? I got introduced to a gentleman called Rajiv Agarwal, who ended up becoming the CEO of the business. So जैसे ही 2004 में मैं और राजीव जी साथ में आए Nilons ग्रो करने के लिए, तो हमारा फर्स्ट स्टेप टू ग्रो था कि we need to become a brand of some relevance to the world. तो उस वक्त हम बहुत सारे कॉन्फ्रेंस करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्फ्रेंस, और जाके डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट करते थे, कुछ स्कीम्स देते थे कि आप इतना माल आज के डे पे लिखाओगे तो आपको ये स्कीम मिलेगी. तो ऐसी ही कॉन्फ्रेंस चल रही थी गुवाहाटी में. हमने जाके वो वहाँ पे राजीव जी ने वो मीटिंग दी, मोटिवेट किया, लोगों को प्रोत्साहन दिया और स्कीम दिया. और इस प्रकार का वो माहौल बना कि उस दिन जो ऑर्डर लिखी गई वॉज इक्विवेलेंट टू 1 फुल ट्रेन जिसके अंदर 24 डब्बे होते हैं रैक में. उतना अचार का ऑर्डर जो शायद से वो टेरिटरी 1 साल में बेचती है, वो 1 दिन में वो 1 महीने के लिए ऑर्डर लिख पाया गया.
you.